Hi guys, welcome back to my YouTube channel Artsphere. Namaste to all. And so I have started this artist podcast and I'll be shooting and releasing at least 2 videos of this podcast every month. So stay tuned for that guys. Please subscribe to my channel and hit the bell notification. We are a family of 400 plus subscribers, so congratulations for that. And now let's begin with the podcast. I've been thinking about creating this podcast since very long time, and due to my class 12 board exam I was not able to execute the plans, but now here we are, the boards are cancelled, and hence I've stopped procrastinating and started my podcast, which is in front of you. And please let me know if you liked it, and you guys, if you have anything in your mind, just execute it. Please do not wait for your exams to cancel. I think I have learned something from this experience and I will stop procrastinating on such things. So now let's begin with the artist podcast. Our first guest of honor is Mr. Praveen Karmakar from Jharkhand. He is a freelancing artist. He is the country head of Fabriano in Aquarello, which is an esteemed company. He is also the founder of IICAP, that is Indian Institute of Creative Art and Painting. He is also the senior faculty of JNKK, that is Jawaharlal Nehru Kala Kendra. He works in various mediums like watercolor, acrylic, and even pen sketches, and he has interest in digital art. This is the first artist guest on my podcast, and I'm honored to have him and gain knowledge from his experience and in a most simplified way. So he's the best person to explain you about his journey and freelancing career. He has a very aspiring career and his artwork and art style is splendid. He is inspired from everyday life, from his surrounding, from his state, Jharkhand, and he has created various series on that. And he also feels that it is very important for every artist to first of all observe his surrounding and create artwork from that. And he has explained it in the podcast as well. It is a huge request to watch the podcast till the end. And now let's begin. Good evening, sir. Good evening, Vanshika. Yes, so can you please tell us something about your artistic career? कि how कैसे start हुआ था and how did it begin? Yes, from the beginning, अगर मैं बोलूँ तो I was started painting from my childhood, and तभी मैंने इसे professionally लूँगा ऐसा कुछ सोचा नहीं था. Gradually, when I started taking classes from senior artists of my state, then gradually I got interest in watercolor and acrylic and oil, those medium. But when I joined Fabriano in Aquarello, this is one of the largest group of watercolor among the world. एंड उसके बाद मेरा बड़े बड़े मास्टर्स के साथ मिलना हुआ, उठना बैठना हुआ, उनके साथ एग्जीबिशंस, वर्कशॉप्स वगैरह वगैरह मेरे स्टार्ट हुए. तो फिर मुझे लगा कि देयर वाज समथिंग इन माय आर्ट आल्सो, सो दैट्स व्हाई एवरीबॉडी अप्रिशिएट एंड टेक मी सीरियसली. एंड उसके बाद ये मैं बहुत प्रोफेशनली आ गया. टीचिंग आई वॉज स्टार्टेड बहुत पहले ही शुरू कर दिया था, लेकिन ये आर्ट वर्ल्ड में जो एक्चुअल आर्ट वर्ल्ड है उस पर मैं 6-7 साल हो रहा है मैं पूरी तरह इन्वॉल्व हुआ हूँ. और अभी मैं फैब्रियानो इन एक्वारेलो का हेड भी हूँ. इंडिया के लिए मैं रिप्रेजेंट करता हूँ उसको. सो हम लोग उसके थ्रू में देयर आर लॉट्स ऑफ वर्कशॉप्स एंड एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज भी करते हैं इसके थ्रू. यस सर, तो जो आपने अभी बताया कि आपने सीखा स्टार्ट करना, पहले सीखना शुरू करा था बेसिक से आपकी स्टेट में जो आर्टिस्ट थे, सो एज इन मतलब आपने पर्सनली सीखा था या फिर कॉलेजेस वगैरह आपने ज्वाइन करे थे? नहीं, एकेडमिक कॉलेज तो मैंने ज्वाइन नहीं किया. मैं एक्चुअली आप यू कह सकते हैं कि मैं सेल्फ टॉट. तो इसका मुझे एक फ़ायदा भी हुआ कि वट एवर आई लर्न फ्रॉम माई प्रैक्टिस.
and the guidance of senior artists. Obviously इसमें ज़्यादा मुझे हेल्प मिला मेरी खुद की प्रैक्टिस से, एंड that is little bit unusual. जब whenever you don't have a academic education, that's time you are eligible to do something new. So कहीं ना कहीं वो मेरे लिए beneficial हो गया, और वो unusual part मेरी पहचान। यस सर, डू यू फील कि जो कॉलेजेस में अभी जैसे पढ़ाया जाता है, जो उससे जो आर्टिस्ट कॉलेजेस में से निकलते हैं उनका मतलब जो प्रोफेशनल करियर होता है वो उतना फ्लरिश होता है, उनकी जो सिखाया जाता है वो रेलेवेंट है या नहीं है, या जो अपनी आप सीखता है प्रैक्टिस करके वो ज़्यादा रेलेवेंट है? नहीं, अगर रेलेवेंट की बात करें तो एकेडमिक एजुकेशन होना ज़रूरी है, और आप प्रॉपर चीज़ें सीख पाते हैं प्रॉपर तरीके से। इसके लिए एक इंस्टीट्यूशन में जाना बहुत ज़रूरी है। हाँ, अभी के जो समय में जो आर्ट कॉलेजेस हैं, मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द आर्ट कॉलेजेस की स्थिति जो है वो उतनी बढ़िया नहीं है जो पहले हुआ करती थी। मे बी फैकल्टीज़ मेंबर्स बहुत अच्छे होंगे, पर शायद वो माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा कि जिस माहौल में पहले सिखाया जाता था। तो अभी मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स से मिलता हूँ, लोग मुझसे कॉल भी करते हैं कि वो 4th ईयर 5th ईयर कर चुके हैं आर्ट कॉलेज से, लेकिन जब मैं उसका काम देखता हूँ तो मुझे नज़र आता है कि ये बहुत ही स्टूडेंट लेवल है। तो उससे पता चलता है कि उस कॉलेज का जो पहले जो अस्तित्व था, अब कहीं ना कहीं वो अस्तित्व उसका नहीं रहा। इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो वो माहौल जो है वो शायद अब उनको नहीं मिल पाता है, या फैकल्टी मेंबर्स उस तरह से अब इन्वॉल्व नहीं हो पाते स्टूडेंट्स के साथ। बहुत सारी वजह है, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि आर्ट कॉलेजेस का एजुकेशन भी ज़रूरी है, और आपकी खुद की डेडिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। जब ये दोनों चीज़ आपके पास है तो आप कहीं से भी अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जी, कम्प्लीटली अग्री सर, कि जब तक बच्चे में खुद वो नहीं होगा सीखने का, तब कोई भी फैकल्टी उतना नहीं करा सकती। अपने आप से भी कुछ करना चाहिए जो पर्सनल लेवल पे करते हैं। जी, और सर आप IWS के भी पार्ट हैं, सो प्लीज़ टेल अस समथिंग अबाउट दैट ऑर्गेनाइजेशन। मैं IWS में इन्वॉल्व हुआ हूँ, लेकिन मैं IWS के साथ मैंने काम किया है, लेकिन मैं कुछ ऑफिशियल कोई पोस्ट होल्ड नहीं करता उसका। मैं फेब्रियानो का पोस्ट होल्ड करता हूँ। दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो है अभी पूरे वर्ल्ड में बहुत अच्छे से काम कर रही है। दोनों नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, और ये वाटर कलर को प्रमोट कर रही है, वाटर कलरिस्ट को प्रमोट कर रही है। तो दोनों का काम का तरीका एक ही है, लेकिन चूंकि मैं फेब्रियानो के साथ जुड़ा हुआ हूँ तो मुझे फेब्रियानो के प्लस पॉइंट्स ज़्यादा मालूम है रादर देन IWS के। फेब्रियानो का प्लस पॉइंट ये है, हाँ, प्लस पॉइंट ये है फेब्रियानो का कि हमें ये आदेश होता है फेब्रियानो इटली से कि हमें हर साल कुछ बड़े नाम, तो वो जो बड़े नाम तो सबको विजिबल रहता है, वो दिखता ही है, लेकिन हमें ये आदेश रहता है उस बड़े नाम के साथ हमें 4 जॉन्क आर्टिस्ट भी ढूंढने पड़ते हैं जो एकदम अभी न्यू कमर है और नया सीख रहे हैं। हमें कम से कम 4 अंडर 30 एज के भी आर्टिस्ट ढूंढने पड़ते हैं और उसे इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, और हमें 4 न्यू फेसेस जो रिपीट नहीं हो रहा है, पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है, वैसे नाम भी हमें फेब्रियानो के पास, वैसे लोगों के आर्टिस्ट के काम भी फेब्रियानो के पास भेजना पड़ता है। इसलिए हम लोग इन वाटर कलर के नाम से ऑल ओवर इंडिया के अलग अलग जगहों पे वर्कशॉप्स करते हैं, और उस वर्कशॉप्स के दौरान जो वहाँ के लोकल पार्टिसिपेंट्स आते हैं, और अगर हमें वहाँ कोई भी नया टैलेंट दिखता है तो हम उसे अडॉप्ट करते हैं और उससे कोशिश करते हैं कि फेब्रियानो के प्लेटफॉर्म पे लेके जाए और उसको उसके काम को एक्सप्लोर हो, उसे इंट्रोड्यूस करे आर्ट वर्ल्ड के साथ। तो ये एक जो हमारा फेब्रियानो का प्लस पॉइंट है, जो ये हम लोग पिछले 4-5 सालों से इंडिया से बहुत सारे नए आर्टिस्ट को हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया, और अभी वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
जी जी जी। बिकॉज सर जो नए आर्टिस्ट होते हैं उनको भी बाहर लाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये बहुत सही चीज़ है कि आप मास्टर्स के साथ साथ जो बिल्कुल बिगनर्स होते हैं जिनका अच्छा काम होता है उनको भी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। तो सर जैसे अभी आप एक ओरिजिनल सीरीज़ पे काम कर रहे हैं बिहाइंड द बाउंड्रीज़, तो आप जब इन ओरिजिनल सीरीज़ पे काम करते हैं तो आपका थॉट प्रोसेस एंड किस तरह से आप अप्रोच करते हैं उनको, प्लीज़ उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, मैं जिस माहौल में पला बड़ा हूँ ये है झारखंड। झारखंड का एक रांची शहर है जो एनवायरनमेंट के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन है। नेचर सराउंडेड है, लॉट्स ऑफ माउंटेन्स, वाटरफॉल्स, ये सब सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। साथ ही साथ यहाँ पे एक और है ट्राइबल्स की बहुत ज़्यादा मात्रा में ट्राइबल्स हैं यहाँ पे। तो उनके जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही साधारण सा लाइफस्टाइल है और बहुत कलरफुल है, लेकिन बहुत कलरफुल है। तो वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था कहीं ना कहीं। तो मैं उस तरह से फिगर के साथ या फिगरेटिव कंपोजिशन के साथ जुड़ता चला गया। तो मेरी जो सीरीज़ थी झूमर, मतलब हमारे यहाँ के जो फोक डांस होते हैं ट्राइबल्स के, उसे झूमर कहते हैं। तो उस झूमर पे मैंने बहुत सारे सीरीज़ पे काम किए हैं और उससे मेरी पहचान बनी। तो इस तरह से फिगर से मेरा बहुत ज़्यादा लगाव रहा, ह्यूमन फिगर से। फिर अभी 1 साल से जब हम घर पे बैठे हुए हैं, मोर देन 1 ईयर हो गया, स्पेशली सारे आर्टिस्ट घर पे बैठे हुए हैं और कोविड के कारण। तो एक बहुत सोचने का मौका मिला कि जिन लोगों के साथ मैं मिलता था अभी उनसे फिजिकली मिल नहीं पा रहा हूँ। तो ये जो ह्यूमन अट्रैक्शन जो था वो कहीं ना कहीं जब आप उससे दूर होते हैं तो ये आप जान के रखिए कि आपके अट्रैक्शन और बढ़ती है। तो ये एक बड़ा। दूसरी है जो आपके जो ड्रीम्स होते हैं, ड्रीम्स जो होते हैं आर्टिस्ट के, वो बिहाइंड द बाउंड्रीज होते हैं, बाउंड्री के बाहर होते हैं। तो दोनों चीज़ थे। एक तो हम एक दायरे में बंध गए, हमें बांध दिया गया मजबूरी में और हम वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे। लेकिन हमारे जो सपने हैं वो बाउंड्री क्रॉस करते हैं हमेशा। तो चूँकि मुझे फिगर से लगाव है तो मैंने इस फिगरेटिव कंपोजिशंस को लेके मेरे जो ड्रीम्स है उसको लेके और फिगरेटिव के जो पोस्चर्स हैं, अलग अलग पोस्चर्स, जब उठते बैठते हैं, खड़े होते हैं या फिर कोई भी एंगल में रहता, तो वो मैंने एक कंपोज किया और उसको मैंने नाम दिया कि बिहाइंड द बाउंड्रीज है। ये मेरे ड्रीम का भी हिस्सा है और ये मेरे जो मेरा आसपास के जो एनवायरनमेंट में मैं पला बड़ा हूँ तो उसका भी हिस्सा है। क्योंकि सर मेरे को ये सीरीज़ बहुत अच्छी लगी, बहुत स्ट्राइकिंग सीरीज़ है, मतलब इसको देख के आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स भी आते हैं। सो जी सर। सर तो आप फिगरेटिव ड्राइंग इसमें भी, सीरीज़ में भी आपने बहुत ऐड करी है एंड वैसे भी आप करते रहते हैं कॉम्पोजिशन वगैरह में। तो आप फिगरेटिव ड्राइंग की आपने प्रैक्टिस किस तरह से करते हैं, लाइक अब डेली बेसिस पे करी थी, किस तरह से, उसके बारे में? हाँ, फिगरेटिव ड्राइंग के लिए देखिए, एक तो हमारे यहाँ पे इंडिया में वो माहौल नहीं है कि आप फिगर को स्टडी कर पाए, क्योंकि वो यहाँ रेस्ट्रिक्टेड है। तो लेकिन अब बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप उस ऑप्शंस में जाके अपने फिगर ड्राइंग में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप उसके एनाटॉमी प्रैक्टिस कर सकते हैं या समझ सकते हैं। तो वही मैंने किया भी। और फिर जब भी मुझे बाहर जाने का मौका मिला, इंडिया से बाहर जब भी मैं गया, तो मैंने वहाँ के जो सेशंस होते हैं, न्यूड सेशंस, मैंने वो अटेंड किया। वो 20 मिनट्स 30 मिनट्स का एक सेशन होता है और उसमें 4-5 पोजेस होते हैं, क्विकली यू हैव टू ड्रॉ इट। तो वो मैंने किया है वहाँ से। एनाटॉमी पे मैंने बहुत ज़्यादा खुद से प्रैक्टिस की और जो इसके बहुत जानकार है मैंने उनसे हमेशा कांटेक्ट में रहा। तो हमारे यहाँ पे एक बहुत लेजेंडरी स्कल्पटर हैं श्री अमिताभ मुखर्जी। तो उनका फिगर पे बहुत ही ज़बरदस्त नॉलेज है, तो उनका हमेशा मुझे मार्गदर्शन मिलता रहा है कि एनाटॉमी के बारे में। और कहीं ये मुझे देखिए, हर आर्टिस्ट का अपनी एक पसंद नापसंद
का दायरा होता है। तो मैं मेरा नेचर से लगाव तो ज़रूर है, नेचर से लगाव है ही, लेकिन मैंने नेचर पे बहुत ज़्यादा पेंटिंग पे काम नहीं किया। हाँ, क्लासेस वगैरह लेने के लिए मुझे करना पड़ा है तो मैंने किया है, पर मोस्टली मैंने फिगरेटिव काम ही किया है। तो फिगरेटिव में मेरी एक और सीरीज़ है जो मैंने बहुत काम किया, उसमें मेन है टू वर्क। तो मुझे ऐसे लोग बहुत अट्रैक्ट करते हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, जैसे रिक्शा पुलर हो गया, या फिर कुली हो गया, या फिर मोटिया मजदूर हो गया, या कोल माइंस में काम करने वाले। मैं ऐसे सब जगह पे गया भी हूँ, और मैं उन लोगों को जब देखता हूँ काम करते हुए तो मुझे वो बहुत अट्रैक्ट करते हैं। और उसके मस्कुलर वैल्यूज़, उसके मेहनत करने का तरीका, और फिर भी एक नॉमिनल वेरी लो ग्रेड प्रोफाइल में अपने लाइफ को जीना, तो वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं। तो मैं हमेशा वही सब्जेक्ट्स को हमेशा से चूज़ किया हूँ आगे से। जी सर। सर आप डिजिटल आर्ट भी करते हैं, तो वाटर कलर, डिजिटल आर्ट, इनमें से आप कौन सी ज़्यादा प्रेफर करते हैं करना? डेफिनेटली ये डिजिटल आर्ट, ये न्यू अभी नए जनरेशन का काम है। तो आर्टिस्ट को अप टू डेट होना ही पड़ता है, बिकॉज यू हैव टू सर्वाइव। तो डिजिटल आर्ट मैंने जस्ट अभी शुरू किया है। इसके लिए आप कहें तो मेरे स्टूडेंट्स ही ज़्यादा जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो लोग अभी न्यू जनरेशन के हैं, तो वो डिजिटल आर्ट करते हैं। तो मैंने भी वहाँ से ही देख के, उनसे ही आइडिया लेके मैंने फिर शुरू किया था। लेकिन मैं एकेडमिक की बात करूं तो हमेशा आपको पेंसिल पेपर पे ही काम करना होगा। आप चाहे बाद में जाके सॉफ्टवेयर पे काम करें, लेकिन सॉफ्टवेयर आपका एक लिमिटेशन है जहां पे आपको वो रोक लेगा। लेकिन आप जब मैनुअली काम करते हैं तो उसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती है। तो आपको अगर अच्छा आर्टिस्ट बनना है तो यू शुड गो विद पेंसिल एंड पेपर। यस, एब्सोल्युटली। सर, डू यू थिंक कि जो आइडियाज़ और कंसेप्ट होते हैं, जैसे आप सीरीज़ बनाते हैं, कि वो हर आर्ट वर्क में बहुत एसेंशियल है? एंड जब आप किसी आर्ट वर्क में देखते हैं तो उसमें आपको सबसे स्ट्राइकिंग फीचर क्या लगता है उस चीज़ का? सबसे पहले आप क्या चीज़ नोटिस करते हैं जो आपको उसकी तरफ आकर्षित करती है? बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो उस आर्टिस्ट का थॉट पहला, दूसरी चीज़ है उसका कंपोजिशन बनाने का तरीका। जैसे एक ही बात को आप कई तरीके से कह सकते हैं, तो हर आदमी, हर आर्टिस्ट अपने अपने तरीके से उस बात को कहते हैं। दूसरा है कि उसका कलर सेंस, वो कैसे माहौल में पला बड़ा, तो उसके कलर सेंस कैसे होंगे, उसका खुद का पर्सनालिटी कैसा है, उसका खुद का कैरेक्टर कैसा है, तो वो इस तरह से कलर्स चूज़ करते हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो अट्रैक्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं कि जिस चीज़ को मैं कभी सब्जेक्ट नहीं मानता था, या मैं उसे रोज़ देखता हूँ, कोई एक कॉर्नर या कोई एक पार्ट में हमेशा देखता हूँ उसको आते जाते, लेकिन कभी मुझे लगा नहीं कि आई शुड पेंट दैट। लेकिन मैं उसी सब्जेक्ट को जब किसी और आर्टिस्ट को बनाते हुए देखता हूँ तो मुझे लगता है ये तो मेरे घर के पास ही था, मैंने तो कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। तो ये पार्ट बड़ा अच्छा लगता है कि जिसको मैंने सब्जेक्ट नहीं माना, लेकिन वो किसी और के लिए सब्जेक्ट था। तो ये एक जो डिफरेंसेस है चीज़ों को देखने का, और चीज़ों को देख के फिर उसको अपने तरीके से इम्प्लीमेंट करने का, तो ये जो आइडियाज़ निकलते हैं दूसरे आर्टिस्ट के काम से, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। सर, एनी टिप्स फॉर फ्रीलांसर आर्टिस्ट्स? हाँ, देखिए, एक पहले अब ज़्यादातर मैं अभी जितने भी बिगिनर्स से मिलता हूँ, या जितने भी मेरे वर्कशॉप्स में आते हैं, या मैं देखता हूँ जितने भी लोगों को, बिगिनर्स का प्रॉब्लम अभी क्या है कि थोड़ा सा जो अभी का जो सोसाइटी है वो चेंज हुआ है। इट्स अ फास्ट फूड सोसाइटी है अभी, हर चीज़ फिंगर टिप के अंदर मौजूद है। तो हर चीज़ों को बहुत जल्दी में हमें मिल जाता है। एक दूसरा है, जिस चीज़ को जानने के लिए जो उम्र की ज़रूरत होती है उससे पहले हम उसको जान लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा भी होता है और कहीं ना कहीं इसका नुकसान भी होता है। पेंटिंग एक स्लो फूड की तरह है। ये आप फास्ट फूड की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। आप 4 साल या 3 साल के कॉलेज प्रैक्टिस के बाद आप नहीं सोच सकते कि आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो गए। इसमें एक लंबा एक्सपीरियंस
की ज़रूरत पड़ता है। दूसरी चीज़ है कि जो आर्टिस्ट मोस्टली बिगिनर्स है वो पेंटिंग जनरली करते हैं फॉर सोशल मीडिया। अभी मैंने जो ट्रेंड देख रहा हूँ, तो सोशल मीडिया में उसे पोस्ट करना होता है, फिर उसे लाइक्स एंड कमेंट्स लेने होते हैं। इस चक्कर में वो क्या करते हैं कि पेंटिंग्स बनाते हैं, ज़्यादातर स्टडी नहीं करते। देखिए, स्टडी और पेंटिंग में बहुत फ़र्क है। जैसे पेंटिंग एक थियोरिटिकल सब्जेक्ट नहीं है, पेंटिंग एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, लाइक योर मैथ्स। अगर आपको भी याद होगा, आप भी स्कूल में पढ़े हैं, तो आप जब मैथ्स कर रहे होते हैं तो सॉल्यूशन निकालने के लिए साइड में आप कैलकुलेट करते हैं, प्लस माइनस वटेवर। तो तब वो कैलकुलेशन जो करते हैं वो जाके आपके मैथ्स का आंसर को परफेक्ट करता है या करेक्ट करता है। तो ये जो मैथ्स का जो आंसर है दैट इज़ अ पेंटिंग, और ये जो साइड में जो कैलकुलेशन कर रहे थे दैट इज़ स्टडी। तो ये सारे जो आर्टिस्ट हैं मैक्सिमम, वो क्या करते हैं, डायरेक्ट पेंटिंग करते हैं, कैलकुलेशन वाले पार्ट जो स्टडी पार्ट है उसको अवॉइड करते हैं। तो मेरा एकदम सजेशन है, आप 10 बार स्टडी करो और 1 बार पेंटिंग करो। मतलब 10:1 अगर आप रेशियो फॉलो करते हैं, आप अगर 6 महीना भी फॉलो करेंगे, 6 मंथ्स, तो 6 मंथ्स में आपको दिख जाएगा कि आप कितना ज़्यादा इम्प्रूव कर गए। क्योंकि स्टडी ही क्या होता है, स्टडी से आप उस चीज़ को प्रॉपरली जान सकते हैं जिस चीज़ को आपको पेंटिंग में करना है। तो इसके बहुत सारे टेक्निकल बातें होती हैं जिसको समझ के वो स्टडी के दौरान समझ में आता है। तो ये मैं हमेशा मेरे क्लासेस में भी या बाहर में भी या अदर्स को भी मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आप स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दो, 10:1 का रेशियो रखो। और सब्जेक्ट्स, दूसरी चीज़ है कि सब्जेक्ट से आपको डाइवर्ट नहीं होना है क्विकली। मतलब क्या होता है, आज किसी ने लैंडस्केप बनाया, वो भी रूरल, कल वो किसी ने किसी और आर्टिस्ट का सिटीस्केप देखा तो वो उतर गया सिटीस्केप में, परसों किसी आर्टिस्ट का पोर्ट्रेट देखा तो वो परसों पोर्ट्रेट बनाया। तो क्या हुआ, ना वो लैंडस्केप हाथ में आया, ना सिटीस्केप, ना पोर्ट्रेट। अगर आप एक सब्जेक्ट को लेके कम से कम 1 महीना, 30 डेज, 40 डेज या 30-40 पेंटिंग्स का सीरीज के हिसाब से काम करें तो आपका उस सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। यू डिसाइड फॉर अ सब्जेक्ट कि अभी जून मंथ में मुझे यही काम करना है, ओनली रूरल लैंडस्केप। तो आप रूरल के जगह कभी भी आप सिटीस्केप में जंप नहीं करेंगे। नेक्स्ट मंथ जब आप हो जाएगा तब आप अपना सब्जेक्ट फिर से चेंज करिए, और चेंज करके फिर आप 1 मंथ तक उसमें स्टिल उसी सब्जेक्ट पे रहें। तो अगर इस डिसिप्लिन के साथ न्यू कमर्स काम करेंगे तो उनको उनका काम बहुत चेंज हो जाएगा, बहुत उनको फ़ायदा होगा। यस यस सर, आपने इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी बताया कि हमें डेली बेसिस पे किस तरह से प्रैक्टिस करनी चाहिए, उसको थोड़ा सा एलैबोरेट करके प्लीज़ आप ये बताएंगे कि स्टडी किस तरह से करें हम। देखिए, स्टडी कैसे होता है कि अगर आप पहले तो आपको देखना है कि आपके घर के अंदर क्या क्या है। क्या होता है, हमारा एजुकेशन ना वो घर से तैयार होता है। आप कितने भी अच्छे से स्कूल में जाएं और अगर आपको घर से संस्कार नहीं मिले हैं तो आप बाहर आके मिसबिहेव करिएगा, आप गाड़ी रोड के बीच में पार्क करिएगा, आप अननेसेसरी हॉर्न मारिएगा, आप लोगों को टीज करिएगा, लोगों से सही से बात नहीं करिएगा। तो ये आपको स्कूल नहीं सिखाता। ये जो एजुकेशन है ये आपको घर से मिलता है, वो सीखने को मिलता है। तो इसका मतलब ये हो गया, आप सरकारी स्कूल में भी पढ़ रहे हैं तो भी अगर आपका संस्कार बहुत अच्छा है तो आप बाहर आके बहुत वेल बिहेव करिएगा। तो एजुकेशन जो होता है वो घर का, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आर्टिस्ट क्या करते हैं, वो इंस्पायर्ड होते हैं कभी एल्बेरो से, कभी जोसेफ से, कभी किसी और से, ऐसे करके इंस्पायर्ड होते हैं और वो सोचते हैं कि मुझे वो बनाना चाहिए। अब एल्बेरो बैठा हुआ स्पेन में, जोसेफ बैठा हुआ मैक्सिको में, मैं बैठा हूँ कहीं और, मेरा घर का माहौल अलग है, आसपास माहौल अलग है। तो वो सीधा उधर चले जाते हैं जहाँ वो कभी गया नहीं, उस पार्ट को वो बनाना शुरू कर देते। लेकिन स्टडी में के हिस्से में क्या आता है कि आप पहले अपने घर के सामान जो आपके पास एकदम आपके हाथ में आप छू के देख सकते हैं, उन चीज़ों को स्टडी करिए। आपके शूज़ हैं, आपके सैंडल्स हैं, आपके कॉस्मेटिक्स हैं, आपके टूथपेस्ट है, आपके ब्रशेस हैं, आपके टेबल, चेयर, मोबाइल चार्जर, व्हाटएवर, जो बॉटल वगैरह जो भी है आपके घर के अंदर में, वो आपके स्टडी का हिस्सा होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद आप जब भी बाहर निकलते हैं तो आप
वो आसपास के नेचर को ध्यान से देखना शुरू करिए। ट्रीज कैसे होते हैं और एक्चुअली ट्री का हाइट कितना होता है और उसके अकॉर्डिंग एक घर का हाइट क्या होना चाहिए। तो ये सब बातें, एक होता है विजुअल स्टडी जो हम आंखों से देख के स्टडी करते हैं और उसको मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं। दूसरी होती है हम प्रैक्टिकली आके करते हैं। तो अभी तो आपके पास डिवाइस भी है, मोबाइल है, हमेशा आपके साथ है। आप जहाँ मन करे वहाँ उस चीज़ को क्लिक कर लीजिए, फिर आप घर में आइए, घर में आके उसको स्टडी करिए। तो सीधा आपको स्विट्ज़रलैंड जंप करने का ज़रूरत नहीं, स्पेन जंप करने का ज़रूरत नहीं। पहले आप अपने आसपास के चीज़ों को स्टडी करना सीखिए। उसके बाद आप जैसे जैसे वो बेसिक्स, आपके संस्कार अच्छे होने शुरू होंगे, तो आप बाहर में जब निकलेगा, आप स्पेन की पेंटिंग करेंगे, मैक्सिको या रोम या वेनिस की, तब आप वहाँ जाके वेल बिहेव करिएगा, है ना। तो ये ठीक उसी तरह से हो गया कि आप स्कूल अच्छा ले लिए लेकिन आपका घर का माहौल ठीक नहीं है, तो आप बाहर जाके वेल बिहेव नहीं कर सकते। जी सर, एब्सोल्युटली, आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा पूरा स्टडी कैसे करनी चाहिए। और सर, जैसे आजकल सोशल मीडिया की वजह से हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत है और लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करा है हम लोगों ने। उसकी वजह से बहुत मिसकंसेप्शन भी, जैसे अभी आपने क्लियर करा कि डायरेक्टली हमें स्पेन नहीं जाना है, पहले अपने आसपास देखना है, हमें उसके अकॉर्डिंग वर्क करना है। तो सर, आप किस टाइप का कंटेंट कंज्यूम करते हैं वो बताइए हमें प्लीज़, एंड बुक्स वगैरह भी आप थोड़े से रेफ़र करेंगे हमें। देखिए बुक्स तो देखिए, एजुकेशन लेने के लिए आपको कहीं से भी एजुकेशन मिल रहा है तो आप उसको अडॉप्ट करिए। अभी आपको एजुकेशन लेना बहुत आसान है। आप इंटरनेट के ज़रिए कहीं से भी किसी भी आर्टिस्ट के काम को देख सकते हैं, समझ सकते हैं या उससे क्लासेस ले सकते हैं। बुक्स जो होते हैं, बुक्स का एक हेल्प क्या होता है, हमें हमेशा ई बुक्स के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें हमारे पास फिजिकल बुक्स होना चाहिए, वो आपके लाइब्रेरी का हिस्सा होना चाहिए। ठीक उस तरह से मैं बोल रहा हूँ कि जितना बड़ा डॉक्टर होगा आप देखेंगे उसका लाइब्रेरी उतना बड़ा है, जितना बड़ा वकील है उसकी लाइब्रेरी उतनी बड़ी है। तो कहीं ना कहीं आर्टिस्ट का अपना खुद का लाइब्रेरी होना चाहिए। वो लाइब्रेरी अभी आपके पास फैसिलिटीज़ है तो आप ई लाइब्रेरी भी रखिए और फिजिकल लाइब्रेरी भी रखिए। एंड बुक्स के साथ आपके कनेक्टिविटी होना चाहिए। और साथ ही साथ नॉट ओनली आर्ट के बुक्स, आपको साहित्य की तरफ थोड़ा सा आपका झुकाव होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप साहित्य को नहीं समझेंगे तो आगे चल के आप अपने पेंटिंग के साथ इंटेलेक्चुअली बात नहीं कर पाएंगे। मीन्स आपको मैं बहुत आसान भाषा में समझाता हूँ कि अगर एक अभी का कोई बहुत बड़े सिंगर राइटर जो लिरिक्स राइटर है, फिल्मों के गाने लिखते हैं, वो जो गाने लिख रहे हैं बहुत आपको भी लगता है ये तो मैं भी लिख सकता हूँ, है ना। ये क्या लिखा है, बहुत सारे ऊट पटांग लफ्ज़ वो यूज़ करके जैसे हम लोग बोलचाल भाषा में करते हैं वो भी नहीं है, उतनी मिठास भी नहीं है और वो एक लिरिक्स लिखते हैं। अभी एक साधारण सी बात को इंटेलेक्चुअल तरीके से वो बता नहीं पाते हैं क्योंकि उसका वो स्तर ही नहीं है। लेकिन आप जब गुलजार साहब के आप लिरिक्स देखेंगे तो आप उसको सुनेंगे तो एक बहुत मामूली सी लाइन है, सीधी सी लाइन है, आराम से बोला जा सकता है। उसको उन्होंने बड़ा ही इंटेलेक्चुअल तरीके से उसको जाहिर किया। तो इसका कहीं ना कहीं वजह यह है कि उनका साहित्य के साथ लगाव बहुत ज़्यादा है। तो साहित्य को पढ़ना हमारे जितने भी ग्रेट साहित्यकार हैं, चाहे वो रविंद्रनाथ हो, बंकिम हो, प्रेमचंद हो या बाहर के जितने भी हैं, वो हमें लगाव रखना चाहिए। एक दूसरा है न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पार्ट को आप पढ़ें, क्योंकि आपको देश दुनिया की खबर रहनी चाहिए, तभी आप अप टू डेट रहेंगे उस पर बात करने के लिए। तो जो बात आप ऐसे ज़बान से करते हैं, आर्टिस्ट वही बात को फिर अपने पेंटिंग पे कन्वर्ट करता है। तो ये बियॉन्ड द वर्ड्स होता है, वो अपनी बात को कहने का। तो ये चीज़ें अपने हर आर्टिस्ट को तैयार करना चाहिए। और आपको क्या पसंद है, सबसे बड़ी बात है कि आपको क्या पसंद है, आप उसी सब्जेक्ट को ही आगे लेके जाइए और कोशिश करिए कि
उसके उसमें जितनी बेहतर तरीके से आप बात कर पाएंगे, उसको जितनी बेहतर तरीके से आप बात कर पाएंगे, आप उतने अच्छे तरीके से लोगों को कन्विंस कर पाएंगे कि ये चीज़ भी अच्छा होता है। देखिए क्या होता है कि आपने बाहर के किसी का एक चीज़ देखा, और आपको लगा कि ये चीज़ मेरे पास होनी चाहिए, लेकिन आपके पास जो चीज़ है आप उसको भी बाहर के लोगों को दिखा सकते हैं कि ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। तो आप अपने प्रोडक्ट को ऐसे तैयार करिए कि लोग उसमें मजबूर हो जाए ये करने के लिए कि ये चीज़ मेरे पास होनी चाहिए। तो इंस्पायर होना बहुत अच्छी बात है, और ह्यूमन नेचर है, हम इंस्पायर होते रहते हैं हर दिन, हर वक्त किसी न किसी से। इंस्पिरेशन को लीजिए और उस इंस्पिरेशन को पॉजिटिव ये में कन्वर्ट करके आप अपने काम को करिए। Yes, absolutely right. So at last आपके पीछे एक पेंटिंग रखी हुई है. एक्रेलिक है, दिस इज एक्रेलिक है, इट्स हाँ। तो मैंने जैसे कहा कि मैं फिगरेटिव बहुत काम करता हूँ, तो ये सारे फिगर्स हैं। ये ब्रुजकाशी करके एक गेम होता है अफगान मुगल लोगों का। अफगान में वो एक बकरे को लेके अपना स्नैचिंग का गेम होता है, वेरी रिस्की गेम होता है ये। तो उस पर मैं काम कर रहा था, क्योंकि इसमें मुझे दो चीज़ मिल रहे थे। एक तो फोर्स, क्योंकि हॉर्सेस है, बहुत ज़्यादा फोर्स मिल रहे थे, और दूसरा है मुझे वो एक रिदम भी मिल रहा था। सबके बॉडी लैंग्वेज देखेंगे जो वो एक तरफ झुक के उसको रिदम को तैयार कर रहा था। तो मैंने इस पे भी सीरीज़ की है, एक्रेलिक, नॉट ओनली एक्रेलिक, वाटर कलर में भी की है। तो ये मेरे सीरीज़ का ही हिस्सा है, ह्यूमन फिगरेटिव, चाहे वो किसी भी तरह से आए मेरे पास। यस यस सर, पेंटिंग्स को देख के पता चलता है कि एक आर्टिस्ट ने कितने सालों से उस पर मेहनत करी है, बिकॉज जो इसमें फोर्स आ रहा है ना कि भागने की मूवमेंट, वो बहुत अच्छे से शो हो रही है इसमें। हाँ, देखिए वही है, आप जब बहुत स्टडी करते हैं और आपकी एक्सपीरियंस बहुत हो जाता है, तो फिर आप उसको कंटेम्प्ररी तरीके से बात करने की कोशिश करते हैं। तो आप जो सीधा सीधा बात नहीं करना है कि ये ग्लास है, इसमें पानी है, नहीं, उसको आप कंटेम्प्ररी तरीके से जब बात करेंगे तो लोग सोचेगा अरे हाँ, ऐसे भी तो बात किया जा सकता था, या इस चीज़ को ऐसे भी प्रेजेंटेशन हो सकता था। और वही कंटेम्प्ररी थॉट ही आपका पावर है, आपका सिग्नेचर है, जिसे लोग पैसे दे के खरीदते हैं। यस यस, कंटेम्प्रेरी थॉट विद ट्रेडिशनल पेंटिंग। यस यस, एब्सोल्युटली राइट सर। थैंक यू सो मच सर, आज का सेशन हमारा बहुत इंफॉर्मेटिव रहा, एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम, एंड आपने बहुत सिंपल तरीके से पूरा एक्सप्लेन करा। आई रियली अप्रिशिएट दैट। थैंक यू सो मच सर। Thank you, Vanshika, for inviting me, and hope you will do very good in your life, and it's my best wishes to you. Thank you. Bye bye. Alright, thank you for watching guys. I hope you liked it, and if you like the video, please do like this podcast. Please do share it among your friends and family and artist groups as well. You all must be part of various artist groups. Please share it with them, because the more you share, more this knowledge is going to spread, and that is the only goal of this podcast, to share experience of experienced people. That's the motto of this podcast, and thank you so much. Please like, share and subscribe. You all know the protocol. Please do that, and I'll meet you guys with another video, with another podcast very soon. Thank you for watching.